اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، بے یقینی کی فضا قائم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ عدالت کا وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کو تمام مدد فراہم کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس، وفاقی حکومت کا سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے انتظامات مکمل نہ ہو سکے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا، اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے عدالت کا حکم سر آنکھوں پر مگر قابل عمل نہیں۔ 1000 پولنگ سٹیشنز پر اتنے کم وقت میں انتظامات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کے لیے اتنی جلدی سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں۔ پارلیمنٹ بااختیار ہے، کسی بھی وقت قانون کی منظوری دے سکتی ہے۔ الیکشن کے شیڈیول کے بعد قانون سازی ہو سکتی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں تمام مسائل کا ذکر کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے آج بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے انتظامات نامکمل۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کے لیے لاجسٹک سپورٹ اور عملہ موجود نہیں۔ انتخابات کرانے کے لیے 10 سے 15 دن درکار ہیں۔ عدالت کے سنگل بینچ کے خلاف فیصلے کے لیے آج انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے گی۔ عمران خان نے کہا، ملک پر مسلط کرپٹ ٹولہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے۔ عوام سے خوفزدہ کرپٹ ٹولہ ہمیشہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ چوروں کی کوشش صرف اور صرف ملک پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی ہے۔ مافیا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ عوام ان کو بری طرح مسترد کر چکے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں 2022 کا آخری سورج طلوع۔ 2022 کچھ تلخ اور کچھ خوشگوار یادیں دامن میں سمیٹے آج رخصت ہو جائے گا۔ وطن عزیز نے بھی اس سال کچھ اچھے کچھ برے حالات کا سامنا کیا۔ کہیں تاریخ سیلاب کا سامنا کیا تو دوسری طرف گرے لسٹ سے نکلنے کی خوشی بھی ملی۔ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں فیصلے۔ اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کے بنیادی مفادات کا جرأت اور بہادری، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا۔ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے۔ کسی کو بھی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیف اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردی کی حالیہ لہر اور ملکی امن و امان سے آگاہ کیا۔ وزیر مملکت خارجہ ہینا روانی کھر نے افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شرکاء کا دہشت گردی کے خلاف شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 جنوری کو بھی ہوگا۔ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات۔ پی ایس پی کے بعد فاروق ستار کا بھی مل جل کر چلنے کا اعلان۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں میں اتحاد کے لیے اتفاق ہو گیا۔ فاروق ستار کا دعویٰ، کہا آفاق احمد بھی قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان قائد ہونے کا کوئی جھگڑا نہیں، کافی چیزیں طے ہیں۔ بات چیت میں کافی کچھ واضح ہو گیا۔ اتحاد کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گزشتہ رات مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی تھی۔ فواد چوہدری نے کہا، کراچی روشنیوں کا شہر تھا، پھر ان کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم بنا کر آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا۔ مشکل سے ایم کیو ایم سے جان چھوٹی۔ اب انہیں پھر خیال آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو روکنا ہے تو دوبارہ بارود اکٹھا کر کے کراچی میں چراغاں کی کوشش کی جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا، جن جماعتوں نے اتحاد کرنا ہے کر لیں، پیپلز پارٹی سب پر بھاری رہے گی۔ ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں۔ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے۔ اچھا ہے جماعتوں کا اتحاد ہو جائے، مقابلے کا مزہ آئے گا۔ بلوچستان میں تحریک انصاف کا ایک اور بی اے پی کے 3 ایم پی ایز پیپلز پارٹی میں شامل۔ اراکین اسمبلی نے آصف زرداری سے ہونے والی ملاقات میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں میں پی ٹی آئی کے میر نعمت اللہ اور بی اے پی کے ظہوری بلیدی اور سلیم کھوسا اور عارف محمد شامل۔
पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल। मुस्लिम लीग नून की अपने अरकान असम्बली को 2 जनवरी तक लाहौर पहुंचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर मुशावरत होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने कहा, प्रोपेगेंडा की सियासत मुखालिफिन का वतीरा है। मुखालिफिन ने अपने दौर में अवामी फलाह के लिए कोई पायदार काम नहीं किया। मुखालिफिन काम के बजाय ड्रामे करते रहे। तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत से जवाब देते रहेंगे। परवेज दिलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पंजाब असम्बली से मुतालिक तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का 2 खवातीन अरकान पंजाब असम्बली को पैसों की ऑफर मिलने का दावा। अली जैदी ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर में मंडी लगाने के लिए आए। फरहत फारूक और राशिदा खानम को हमारी साबिक रुकन के जरिए ऑफर की गई। मियां आसम इकबाल बोले, शरीफ और जरदारी खानदान ने पार्लियामेंट को पैसों की अमाजगाह बना दिया। खवातीन अरकान की दरखास्त पुलिस और इलेक्शन कमीशन को देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप गैर आईनी करार दे दिया। कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरां हुकूमत आएगी। निगरां हुकूमत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। मुल्की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इक़दामात उठाए जा सकते हैं। लाहौर में असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर तालीम मुराद रास की यकीन दहानी पर ज़मान पार्क के बाहर असातिज़ा ने धरना खत्म कर दिया। असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि धरना मंगल तक मुअख्खर किया है। मंगल को इजलास में मुतालिबात पर तफसीली गौर ख़ास होगा। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो दोबारा सड़कों पर आएंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्सिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। मुतालिका इदारे आउटसोर्सिंग के लिए इक़दामात तेज करें। शफाफियत का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी में कायम की जाएगी। सिंध हुकूमत का सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का फैसला। सिंध की जेलों में अफगान बच्चे कैद होने की तरदीद। शर्जील मेमन ने कहा, सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों से मुतालिक झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाली 129 अफगान खवातीन जेलों में कैद हैं। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों को जेल में वालिदा के पास रखा जाता है। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक एहतजाज एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। उनकी तरजीह सिर्फ सियासत में मुतालिका रहना है। उनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लोग अब गालम गलोच, इल्जाम तराशी और कंटेनर की सियासत से तंग आ चुके हैं। आटे का 20 किलो का थैला एक हफ्ते में 44 रुपए महंगा। चावल 4 रुपए किलो और अंडे 8 रुपए दर्जन महंगे हुए। मुल्क में महंगाई की शरह 29.3% रिकॉर्ड। महकमा शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। LPG, दाल मसूर, चना, दूध समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। 7 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। तहरीक इंसाफ का महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का आगाज। PTI का डेरा गाजी खान में एहतजाज। असद उमर की जेर सदारत इजलास में एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। PTI रहनुमाओं को तहरीक मुअस्सर अंदाज में चलाने की हिदायत दी गई। इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात पर अब तक 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन के लिए 15 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस किए गए। अदायगी बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, स्टेशनरी और पेट्रोलियम चार्जेस पर हुई। इलेक्शन कमीशन ने खराजात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बज़ाहिर आइन और कानून से मुतसादिम है। इतने मुख्तसर वक्त में इस हुक्म पर अमल नहीं हो सकता। अदालत को ऐसा ऑर्डर जारी ही नहीं करना चाहिए जिस पर अमल दरामद ना हो। इलेक्शन ना हुआ तो इस हुक्म की अहमियत वैसे ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है फैसले के खिलाफ सुबह इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। जनेवा कॉन्फ्रेंस सैलाब मुतासरीन की आलमी बिरादरी तक पुकार बनेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबाए तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक इजलास, तवानाई के मुतबादिल ज़राए और पैदावार से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग और वज़ीर आज़म से वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। मुल्की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वजीर आला पंजाब का जामपुर को जिला बनाने का ऐलान। दाजिल और मोहम्मदपुर नए जिले की तहसीलें होंगी। परवेज इलाही ने कहा, अजला बनने से अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। पंजाब में अजला की तादाद 42 हो गई। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का नीलम जेहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे की टेल रेस टनल की बहाली के काम का जायजा लिया। हवाई सफर के दौरान सिगरेट नोशी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीआईए ने अमले को वार्निंग दे दी, सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करोड़ रुपए की हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फुटबॉल्स में छुपाई गई 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक मुनशियात की मालियत 11.5 करोड़ रुपए से जायद है। सामान सियालकोट से मैनचेस्टर भिजवाया जा रहा था। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। धुंध के बाइस M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैसफोर्ड से ननकाना साहब तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 को भी धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। M5 रोहड़ी से रुकनपुर तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मरी, खैबर कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शांगला और वादिये कुरम में बर्फबारी के बाद दिलफरेब मनाजिर। वादिये लीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। मुल्क के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। वादिये नीलम में केल, ग्रेस, ताउबट, जांगरा में बर्फबारी। शांगला में बर्फबारी, घने बादलों और बर्फ से ढके पहाड़ दिलफरेब मनासर पेश करने लगे। बर्फबारी से शांगला टॉप और यखतंगे रोड पर ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। करदू के फलकबोस पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने मौसम सुहाना कर दिया। डीजल 230 रुपए से कम होकर 203 रुपए का हो गया। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान बहक। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। शाह लतीफ टाउन में मुसल्लह मुल्जिमान शहरी से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। BBA का तालिब इल्म जाम बहक। लवाहिकीन के मुताबिक जहांगीर फोटोग्राफर था। शादी की तकरीब में फोटोग्राफी के बाद वापस घर आ रहा था कि मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। कराची में सुपर हाईवे गंदहारा सोसाइटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिम जख्मी हुए। मुल्जिमों से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। साइकिल पर दुनिया घूमने का मिशन। ब्राजीलियन फैमिली सिंध पुलिस की मेहमान बन गई। ब्राजीलियन शहरी ने अपनी 3 बेटियों के हमरा 2.5 साल कबल सफर का आगाज किया। कराची पहुंचने पर अजरक का तोहफा दिया। इशाइये का भी एहतमाम। हर सो हरियाली, बहते दरिया और पहाड़ों के दामन में रेलगाड़ी की आवाज। बरतानवी दौर में बना अटक खुर्द रेलवे स्टेशन फन तामीर का शाहकार। दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के मिलाप ने स्टेशन की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर से सयाह 1884 में बना स्टेशन देखने के लिए